Really, we want to welcome everybody for this new year. नए साल में सबका स्वागत हम करते हैं. And we have, when we face a new year, we face it with hope. तो जब कभी भी हम लोग नए साल का सामना करते हैं, हम आशा के साथ उसकी सामना करते हैं. We don't have to get discouraged with all the problems in life. हो सकता है कि हम लोग कई बार जीवन के सारी मुश्किलों से निराश हो जाए. There are so many situations and problems that are going to come this year. और ये आने वाले साल में भी कई सारे मुश्किलें हमारे सामने आने वाली है. But for a Christian, there should be no problem. लेकिन एक ईसाई के लिए ऐसा कोई भी मुश्किल बहुत मुश्किल नहीं होगा. Because God is there with us. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है. And one of the greatest revelation for all of us to know. और एक बहुत ही अच्छा ज्ञान जो हम सभी प्राप्त कर सकते हैं. That Jesus is alive. कि प्रभु यीशु जीवित है. That is a truth that we always have to sing. और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसकी गीत हमें हमेशा गाना है. We used to sing the song "Alive, Alive, my Jesus is alive." हमें गाते रहना है कि जिंदा है मेरा प्रभु यीशु जिंदा है. Is that song there in Hindi? Anybody knows the song? वो जिंदा. I think you all know that song. क्या कोई ये गाने से वाकिफ है? वो जिंदा है. Maybe after the meeting. So the very fact that Jesus died is not the central thing, but Jesus is alive. तो प्रभु यीशु की मृत्यु ही ये सबसे ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि वो वापस जी उठे और आज जिंदा है. When Jesus said the last words, all power is given to me. और जब प्रभु यीशु ने बोला अंत में कि सारी शक्ति मुझे दी गई है, both in heaven and in earth. और स्वर्ग में भी और धरती पर भी. And because of that, you go and tell the gospel. और इसी के वजह से हम लोग जाके फिर उसके सुसमाचार फैलाते हैं. I'm with you towards the end of this world. और उसने बोला था अपने चेलों को कि मैं इस काल के अंत तक तुम लोग के साथ हूँ. That is a great assurance that the apostles and disciples, all of us have, because Jesus is alive and He's with us till the very end of this our life. और परमेश्वर के जितने भी प्रेरित हैं, उसके चेले हैं, उन सभी की आशा यही है कि प्रभु यीशु हमारे साथ है हमारे जीवन के अंत तक. We have to go through. The Christian has to go through a lot of sufferings. एक ईसाई को बहुत सारे दुख उठाने पड़ते हैं. But that should not be our theme. लेकिन यही हमारी मुख्य बात नहीं होनी चाहिए. The theme is the march. The theme is that we are going to be triumphant. हमारी मुख्य बात सबसे ज़्यादा ये है कि हम लोग हमेशा जयवंत रहेंगे. Because God is there with us. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है. The power of the Holy Spirit is there with us. और पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे साथ है. We can be overcomers. और उसके वजह से हम लोग जयवंत हो सकते हैं. Over Satan, over sin, and every other evil thing. शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर, हर एक दुष्ट चीज के ऊपर. And that's how we look forward to the new year. और इसी तरीके से हम लोग आने वाले नए साल की ओर देखते हैं. We sing that song, because He lives, I can face tomorrow. हम वो गीत गाते हैं कि क्योंकि वो जिंदा है इसलिए मैं कल का सामना कर सकता हूँ. Because He lives, my fear is gone. क्योंकि वो जीवित है इसलिए सारा मेरा डर चला गया है. He holds my future. वो उसको पता है मेरा भविष्य क्या है. He knows the day I'm going to die. वो जानता है मैं कौन से दिन मरने वाला हूँ. He has planned everything for me. हर एक चीज की उसने योजना मेरे लिए की है. Hallelujah. Hallelujah. And because we look at Jesus, then all our fears go away. और क्योंकि मैं प्रभु यीशु की ओर देखता हूँ मेरा सारा डर निकल जाता है. This is a word that God gave me in Ephesians chapter 3. एफिसियों चैप्टर 3 में जाएंगे. एक वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया. एफिसियों चैप्टर 3 verse 20 and 21. वाक्य 20 और 21. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that is works within us, to Him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and forever. Amen. अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगायुग होती रहे. आमीन. The Apostle Paul ends this chapter. He says, and now unto Him, that who? Jesus Christ. और अब यहाँ पे प्रेरित पौलुस चैप्टर का अंत इस तरीके से करता है कि उसकी ओर मतलब किसकी ओर? प्रभु यीशु की ओर. Who is able to do exceedingly abundantly beyond all that we ask or even think. जो सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है. That's what a wonderful phrase it is. Exceedingly abundantly. तो कितना अच्छा ये वाक्य है कि हमारे समझ से भी बहुत ज़्यादा अधिक. Beyond all that we ask or even can think. वो सारे चीजों के भी आगे जो हम लोग सोच सकते हैं या पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं. We can ask God, Lord, make me like you and help me to walk with you, walk in victory and have fellowship with you. The Lord will surely do it. तो सोचो अगर हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु तू मुझे तेरे जैसा बना, मदद कर कि मैं तेरे साथ चलूँ, तेरे संगति में रहूँ, पाप के ऊपर जय पाऊँ, तो परमेश्वर जरूर ये चीज करेगा. God is able to do exceedingly abundantly
even beyond what we can even think about it. परमेश्वर हम लोग जितना सोच सकते हैं, जितना मांग सकते हैं, उससे भी कई अधिक कर सकता है। He has a wonderful plan for our future. हमारे भविष्य के लिए उसके पास बहुत ही अच्छा योजना है। He says, "Eye has not seen, neither ear heard." और कहीं और लिखा है कि कानों ने अभी तक नहीं सुना है, आंखों ने अभी तक नहीं देखा है, What God has prepared for those who love Him. वो सारी चीज़ों के बारे में जो परमेश्वर ने तैयार की है उनके लिए जो उनसे प्रेम करते हैं। And God seeks to do the very best in each one of our lives. और परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में सबसे अच्छा करने की हमेशा योजना रखते हैं। And according to the power that is works within us. और उसी शक्ति के अनुसार जो हमारे अंदर कार्य कर रहा है। When we receive Jesus Christ into our life, we receive the Holy Spirit. जब भी हम लोग प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकारते हैं तो हमें पवित्र आत्मा भी मिलता है। And the Holy Spirit will do this wonderful work in our life. और पवित्र आत्मा फिर हमारे अंदर ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। We have to cooperate with Him. लेकिन हमें फिर उसका सहयोगी बनना है। But the tremendous power that comes in our life is from God. क्योंकि ये जो बहुत ही अद्भुत शक्ति जो हमारे जीवन में आ रही है वो परमेश्वर की ओर से आ रही है। Our cooperation is important. तो यहाँ पे जरूरी है कि हम लोग भी उसकी सहायता करें, उसकी सहयोग करें। Without our cooperation, God cannot do anything. अगर हम लोग उसकी सहायता नहीं करेंगे तो फिर परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। Our cooperation is 1%. तो हमारा जो ये सहयोग है बस 1% है। But God's part is 99%. लेकिन परमेश्वर का जो काम है वो 99% है। And that is the thing we have always. That's why all the glory will always go to God. तो इसलिए हम लोग हमेशा हमारे जीवन में जो कुछ भी कार्य होता है उसकी महिमा परमेश्वर को ही देनी चाहिए। And what is God going to do in our own lives? और परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है? What does God want to do? What is the goal in our own life? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? To be like Christ, Jesus Christ. कि हम लोग प्रभु यीशु के जैसे बने। And Romans 8:28 says, "We know that all things work together for good for those who love God." और रोमियो 8:28 ये कहता है कि हम जानते हैं कि वो सारे चीजें अच्छे के लिए होते हैं उनके लिए जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं। And what is the good? What that good is that we can become like Jesus Christ. We can be conformed to the image of His Son. और वो सारे चीज जो अच्छे हो रहे हैं तो अच्छा होने का मतलब क्या है कि हम लोग प्रभु यीशु के जैसे बन रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बदलते जा रहे हैं। We can live and walk and speak and behave like Jesus. ताकि हम लोग जी सके, चल सके, बोल सके, अपना जीवन इस तरीके से जी सके जैसे प्रभु यीशु जीते थे। And what does it mean to behave and live like Jesus? तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग बर्ताव करें या जिए प्रभु यीशु के What जैसे। did Jesus come to do first of all in our own life? प्रभु यीशु सबसे पहले हमारे जीवन में क्या करने के लिए आए? He's come to break the power of sin in our own life. वो आए जो पाप का जो शक्ति है हमारे जीवन के ऊपर उसको तोड़ने के लिए। That is the power of the Holy Spirit. और ये वो करते हैं पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। Many times in Thanksgiving time, people say, "God has done what great things in my life." कई बार जब ये धन्यवाद देने का समय आता है तो लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कई सारे अच्छे चीज किए हैं। He gave me a job. उसने मुझे अच्छा काम दिया है। He has given me a good marriage partner. उसने मुझे मेरी शादी हुई है एक अच्छा लड़का या I लड़की के did well साथ, in my studies. या मैंने पढ़ाई में अच्छा किया है। I did so many other good things in this world. मैंने इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे चीजें किए हैं। But this is the Holy Spirit come only for that. लेकिन क्या पवित्र आत्मा बस ये चीज के लिए आया That's a है? very small thing. ये बहुत ही छोटी चीजें हैं। God has healed me of my sickness. परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है एक बीमारी से। When Jesus told that a Syrophoenician woman came to Jesus, तो साइरोफिनिशियो की जो स्त्री प्रभु यीशु के पास आई थी उस समय उन्होंने उससे कहा, Jesus told her it's not good to take the children's bread and give it to the dogs. तो उस समय प्रभु यीशु ने उसको कहा कि ये सही बात नहीं है कि मैं बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को दे दूं। She said, "Doesn't matter, Lord. The dogs can also eat from the small bits, the crumbs that fall from the table of the children." तो स्त्री ने कहा कोई बात नहीं प्रभु यीशु, जो कुत्ते होते हैं वो भी जो बोटियां या जो टुकड़े रहते हैं खाने के जो नीचे गिरते हैं टेबल से वो खा लेते हैं। So that's signifying that, all these things, healing, good things in our life, are just small crumbs from the Father's table. तो ये चीज दर्शा रहे हैं कि जो भी हम लोग संसारी चीज प्राप्त करते हैं, भले वो चंगाई हो या जो कोई भी संसारी चीज होते हैं, वो परमेश्वर की नजरों में बस टुकड़े हैं। And sometimes we run after all these small crumbs. और कई बार हम लोग ये टुकड़ों के पीछे भागते रहते हैं। That's why when Jesus came to this world, a lot of people were only running after crumbs. और प्रभु यीशु के समय में भी कई लोग जो उनका पीछा कर रहे थे वो लोग असल में बस यही टुकड़ों के पीछे ही भाग रहे थे। They got healing. उनको चंगाई मिली, They got miracles. उनको चमत्कार दिखे। They saw the miracle of 5 loaves and 2 fishes. उन्होंने 5 रोटी और 2 मछलियों की जो चमत्कार थी वो भी देखी। Lots of people followed Jesus. और इसकी वजह से कई लोगों ने प्रभु यीशु का पीछा किया। But when Jesus told them, "Come and follow me and take up my cross and follow me," लेकिन जब प्रभु यीशु ने उनसे मुड़कर बोला कि तुम मेरे पीछे आओ, ये क्रूस उठा के मेरे पीछे हर रोज आओ, then only all of them left. तो उस समय ज्यादातर लोग
पीछे हट गए, All of them are interested only in earthly things. क्योंकि उनमें से जो ज्यादातर जो लोग थे वो लोग ये संसारी चीजों में ही दिलचस्पी रखते थे। Vast majority of believers, we are only very happy when God blesses us in the earthly way. और आज के दिन में ज्यादातर जो ईसाई होते हैं वो जो संसारी जो आशीष पाते हैं परमेश्वर से उसी से खुश रहते हैं। But God, what should we ask God for? लेकिन हमें परमेश्वर से क्या चीज की मांग करनी है? Eternal life. अनंत काल का जीवन की मांग करनी The है, wages of sin is death, क्योंकि पाप का जो पगार है वो मृत्यु है, but the free gift of God is eternal life. लेकिन परमेश्वर की ओर से जो मुफ्त की जो तोहफा या वरदान है वो है अनंत काल का जीवन। When we are free from sin, we get the life of God. जब भी हम लोग पाप से मुक्त होते हैं तो परमेश्वर का जीवन हम प्राप्त करते हैं। Eternal life is the life of God. अनंत काल का जीवन है परमेश्वर का जीवन। I have to live like Jesus lived. मुझे उसी तरीके से जीना है जैसे प्रभु यीशु जीते थे, And that is why God has given us the Holy Spirit to work in each one of our lives. और इसलिए परमेश्वर ने हम सभी को पवित्र आत्मा दी है जो हमारे जीवन में कार्य करता है, To transform us and make us like Jesus. ताकि हमारे अंदर एक परिवर्तन हो और हम लोग प्रभु यीशु के जैसे बने, To help us to live as Jesus lived. ताकि हमें मदद मिले हम लोग प्रभु यीशु के जैसे जीने के लिए। And God can change us so much and transform us completely. और परमेश्वर हमारे अंदर एक पूरी तरीके का बदलाव का काम कर सकता है। When we come to the Lord, lot of sin goes away from our own life. जब भी हम लोग परमेश्वर में आते हैं तो कई सारे पाप हमारे जीवन से चले जाते हैं। All the outward sins, जो बाहरी जो पाप होते हैं, like drinking, smoking, and all the going for movies and cursing and getting a lot of bad words. जैसे सिगरेट पीना, दारू पीना या पिक्चर देखना या गालियां देना। But there are a lot of other things that has to be overcome. लेकिन दूसरे ऐसे बहुत सारे पाप होते हैं जिनके ऊपर हमें जय प्राप्त करना होता है। And how can this sin be overcome? और कैसे हम लोग ये पापों के ऊपर जय प्राप्त करते हैं? Believe that Lord will help me. The Holy Spirit will fill me with the Holy Spirit, and I'll get power, and I'll be an overcomer. हम लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भरेगा और मुझे सामर्थ मिलेगा जिसके द्वारा मैं ये पाप के ऊपर जय पाऊंगा। The Holy Spirit comes upon you, और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आता है you shall receive power. तुम्हें शक्ति मिलती है। And what is this power? और ये शक्ति क्या है? The power of Jesus Christ. प्रभु यीशु की शक्ति। How were the early disciples before they received the Holy Spirit on the day of Pentecost? प्रभु यीशु के जो चेले थे पवित्र आत्मा पाने के पहले लोग कैसे थे? They were so fearful. वो लोग एकदम डरपोक थे। They were sitting inside the room. वो लोग डर के मारे कमरे में बैठे थे They were praying. और प्रार्थना कर रहे थे। But when they received the Holy Spirit, लेकिन जैसे ही उन्हें पवित्र आत्मा मिला they started praising and worshiping God. तुरंत उन्होंने परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वो लोग They लगे started prophesying. और वो लोग भविष्यवाणी करने They लगे started speaking in tongues. और अन्य भाषा में बोलने लगे And they came outside. और वो लोग कमरे से बाहर आ गए All the fear went away. और जो भी डर था वो निकल गया उनके जीवन से। Oh, all the fear can go from our life when we receive the Holy Spirit. उसी तरीके से हमारे जीवन से भी सारा डर जा सकता है जब हम लोग पवित्र आत्मा पाते हैं, Fear can really paralyze you. क्योंकि पवित्र जो डर है हमें पूरी तरीके से निर्बल कर सकता है। Fear and timidity is not from God. तो ये जो डर होता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। Bible says God has not given to us the spirit of fear, बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने हमें एक डर वाली आत्मा नहीं दी है, but a power and a love and a sound mind. लेकिन शक्ति, एक सिद्ध दिमाग और प्रेम की आत्मा दी है। And then God will give us a spirit of power and boldness. और फिर परमेश्वर हमें एक सामर्थ और साहस का आत्मा देगा। And that's why when all the Pharisees and all the learned people saw the disciples, they said, what happened? They are poor people, poor fishermen. Where have they got all this great knowledge and great power? इसलिए जो पढ़े लिखे फरीसिया थे, पंडित याजक वगैरह थे, उन्होंने जब ये चेलों को देखा, जब वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए थे, तो वो लोग अचंभित हो गए कि ये जो गरीब मछुआरे थे, इनके पास ये शक्ति, ये समझ कहाँ से आया? Then they realized these are the people who were living with Jesus Christ. फिर उनको समझा कि हाँ, ये वही लोग हैं जो प्रभु यीशु के साथ रहते थे। If you are living in fellowship with Jesus Christ every day, you will get the power of God. अगर तुम प्रभु यीशु के साथ हर रोज संगति में जी रहे हो तो तुम्हें परमेश्वर की ओर से शक्ति मिलेगी। God can free me from all fear. परमेश्वर तुम्हें सारे डर से मुक्त कर सकता है। We know how much of fear can paralyze us. हम सभी जानते हैं कि कैसे डर हमें एकदम बेबस बना सकता है So much of anxiety can come to our heart. और उसकी वजह से कितनी सारी चिंताएं हमारे मन में आ जाती है। Jesus said, do not get anxious. इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम कभी भी चिंतित मत रहो। Don't fear about tomorrow. कल के बारे में डर मत रखो। Holy Spirit always assures us. पवित्र आत्मा हमें बार बार ये चीज का एहसास दिलाता रहता I है। care for the sparrows. वो बोलता है कि मैं चिड़ियों का ख्याल रखता हूँ, I care for you. इसी तरीके से मैं तुम्हारा भी ख्याल रखता हूँ, Don't worry about it. इसलिए तुम चिंता मत करो। Don't trust me always. हमेशा मुझ पे भरोसा रखो। And when we go, we have increasing trust in that God will take care of my life. और इसी तरीके से हमारे जीवन में हम लोग एक बढ़ते हुए भरोसे को एहसास करेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ होता है। And increasingly we can be free from the spirit of fear. और इसी तरीके से हम लोग और होके डर से मुक्त हो सकते हैं हमारे जीवन में। All timidity will go away from our own life. सारी जो डर होती है, जो ये साहस जो नहीं होती हमारे अंदर, वो निकल जाएगी हमारे जीवन I से। can praise God with boldness. और फिर मैं परमेश्वर की स्तुति कर सकता हूँ साहस के साथ। All grumbling and complaining will go away. सारा जो भी कुड़कुड़ होता है जो हम लोग करते हैं वो सब निकल जाएगा। What happens when we are filled with the Holy Spirit? क्या होता है जब हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं?
says in Ephesians, if we look at that verse, एफिसियों में जाएंगे, chapter 5 verse 18. चैप्टर 5 वाक्य 18, एफिसियो चैप्टर 5 वाक्य 18। Do not be get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to you one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord, always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God even the Father, and subject to one another in the fear of Christ. वाक्य 18 से पढ़ेंगे। और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। Verse 18 says, do not get drunk with wine. तो वाक्य 18 कहता है कि दाखरस से तुम मतवाले मत बनो। Now he was telling the Ephesians Christians are very spiritual people. तो यहाँ पे जो एफिसियों के जो ईसाई थे, जो बहुत ही आत्मिक लोग थे, उनको प्रेरित पौलुस ये कह रहा है। What is the danger of getting drunk with wine? तो क्या ये जो इतने आत्मिक लोग थे, क्या वो लोग भी खतरे में थे कि वो लोग शराब पी के उसके नशे में आ जाए? What is the meaning of getting drunk with wine? तो यहाँ पे दाखरस से मतवाले होने का मतलब क्या है? Getting so involved with worldly things that we go so involved with that we get drunk with all, so busy with all the worldly things. उसका मतलब ये है कि हम लोग संसार के चीजों में इतने व्यर्थ हो जाते हैं कि हम लोग उसी में सीमित रह जाते हैं, हम लोग उसी में हमारा ध्यान रहता है। Because it says for that is dissipation. क्योंकि आगे यहाँ पे लिखा है कि उसको लूचपन कहते हैं। I don't know what dissipation. You know what dissipation is? It is a physics word. Light when you put in one, it's focused. Light when it goes spread out, it dissipates. It means it's spread out everywhere. तो लूचपन इसका मतलब क्या है कि सोचो अगर एक कांच के द्वारा तुम लाइट को डालते हो, तो जब ये ज्योति उसके अंदर से गुजरती है तो वो और पूरा फैल जाता है, जो एक उसका लक्ष्य जो रहता है वो निकल जाता है और पूरी तरीके से वो फैल जाता है। When we get so involved with all worldly things all the time and think about the things of this world, our focus for God just goes away. उसी तरीके से जब हम लोग संसार की चीजों में हमेशा व्यस्त रहते हैं और उसी के पीछे पड़े रहते हैं, तो हम लोग का जो ध्यान, जो लक्ष्य होता है परमेश्वर की ओर, वो भटक जाता है। And then there is no the interest in spiritual things becomes very low. और आत्मिक चीजों में जो हम लोग दिलचस्पी हमारे पास होती है वो कम हो जाती है। And then we have to make it a great effort to give thanks and praise to God. फिर बहुत ही मुश्किल पड़ता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के Holy लिए। Spirit say, now stop doing all these things. You're just spending too much time with all these worldly things. तो कई बार फिर पवित्र आत्मा तुमसे कहेगा, अब ये सब जो तुम चीज कर रहे हो, जो संसार की चीजों में तुम पढ़ रहे हो, जरा कम करो, बहुत ज्यादा तुम उसे पढ़ रहे हो। Too much time on Facebook and YouTube and all these other things and WhatsApp and all these things. बहुत ज्यादा समय तुम बिता रहे हो फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब में। But he says, be filled with the Spirit. लेकिन यहाँ पे लिखा है कि तुम आगे पवित्र आत्मा से भरे When we रहो। filled with the Spirit, what happens? We speak to one another in psalms and hymns and spiritual songs. और जब हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो क्या होता है? हम लोग एक दूसरे के साथ भजन, संगीत और आत्मिक गीतों से बात करते हैं। And then singing and making melody or music in my heart. और हमेशा प्रभु के सामने हम लोग गाते रहते हैं और कीर्तन करते रहते हैं मन में। See, when we filled with the Holy Spirit, we can always worship and thank and praise तो God. अगर हम लोग पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे तो हम लोग हर समय परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। It is always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ. और लिखा है कि सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। When we are getting involved with so many worldly things, we'll grumble and murmur and get so unhappy. अगर हम लोग बस संसार की चीजों में ही व्यस्त रहेंगे तो हम लोग ज्यादातर नाखुश रहेंगे, या तो हम लोग हमेशा कुड़कुड़ करते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे। When we are really involved with Jesus Christ and the will of the Holy Spirit, God's will in our own life, there'll always thanksgiving in our life. लेकिन अगर हम लोग प्रभु यीशु की संगति में हमेशा रहेंगे और पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार वो सारी सही चीजों में हम लोग व्यस्त रहेंगे, तो हमेशा प्रभु को हम लोग धन्यवाद दे सकते We हैं। can have a time of worship and praising God always. और हम लोग हमेशा एक स्तुति देने वाली और आराधना देने वाली समय में हम लोग परमेश्वर के साथ संगति में रह सकते God हैं। has called all of us to worship Him. परमेश्वर ने हम सभी को बुलाया है कि हम उसकी आराधना करें। Not just in the morning meeting on Sundays or a few weekday meetings, but always. वो चाहता है कि हम लोग हमेशा उसकी आराधना और स्तुति करें, बस रविवार या जो मीटिंग होता है हफ्ते में उसी दौरान नहीं। A.W. Tozer said, if you cannot worship God from Monday to Saturday, you cannot worship God on Sunday. A.W. टोजर ने कहा है कि अगर तुम परमेश्वर की आराधना सोमवार से शनिवार तक नहीं कर सकते तो फिर तुम रविवार के दिन में नहीं कर सकते। So many people try to whip up a lot of good songs and try to put a lot of music and try to worship God on Sunday. कई कलीसिया में जब ये लोग स्तुति और आराधना का जो सेशन रहता है उसमें वो लोग जोर जोर से गीत गाकर या संगीत बजाकर लोगों की भावनाओं को जगाने की कोशिश करते हैं। But if we are in the Spirit,
all throughout the week, then our worship and praise God on Sundays will be very beautiful. लेकिन अगर हम लोग हमेशा आत्मा में जीते रहेंगे बाकी के दिनों में भी, तो रविवार के दिन भी हम लोग बहुत ही मधुर तरीके से परमेश्वर की स्तुति और आराधना The कर सकते Apostle हैं। John, we heard, it says the Apostle John was in the Spirit on the Lord's day. हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे जो प्रेरित यूहन्ना था वो आत्मा में था परमेश्वर या प्रभु यीशु के दिन में, That's why he could praise God and hear the voice of God. और इसीलिए वो परमेश्वर की स्तुति कर सका और उसकी आवाज को सुन He सका, must be filled with the Holy Spirit. क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा था। I said, Lord, I always want to give thanks to God and praise God and be in the Spirit and be anointed all throughout the week. मैं कहता हूँ कि मुझे हमेशा परमेश्वर की स्तुति करनी है, आराधना करनी है, हमेशा उसको धन्यवाद देना है और उसके पवित्र आत्मा से अभिषेक रहना है पूरे हफ्ते के दौरान। And I want to worship and praise God and thank Him for everything. और हर एक चीज के लिए मुझे परमेश्वर की स्तुति करनी है, आराधना करनी है और हर एक चीज के लिए उसको धन्यवाद देना है। That is the atmosphere of heaven. इसी को स्वर्ग का वातावरण कहते हैं। When you go to heaven, is always people are thanking and praising God. जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे हम लोग देखेंगे कि वहां पे लोग हमेशा परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहते हैं, No उसके grumbling, धन्यवाद देते रहते shouting हैं। or fighting. कोई भी व्यक्ति वहां पे झगड़ता, चिल्लाता हुआ या शिकायत करते हुए नहीं मिलेगा। You know where they are going to grumble, shout and fight? क्या तुम जानते हो कि लोग कहां पर शिकायत करते हुए झगड़ते चिल्लाते रहेंगे? Be doing it in hell. ये लोग नरक में करते रहेंगे Forever and forever and forever. हमेशा हमेशा के लिए। Sometimes we cannot bear people who are shouting and fighting कई बार हम लोगों को सह नहीं पाते जो हम लोग हमेशा चिल्लाते रहते हैं या शिकायत करते रहते and हैं arguing and grumbling. या झगड़े करते रहते हैं। We get fed up. हम लोग एकदम तंग आ जाते हैं You know, उनसे। hell is full of that only. क्या तुम जानते हो कि नर्क ऐसे ही लोगों से भरा है? In this world, there's a lot of hell. इस दुनिया में भी हम लोग ये नर्क को कई बार देखते हैं, But God wants little pockets of heaven in this world. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इस दुनिया में थोड़ा बहुत ऐसे क्षेत्र बने जहाँ पे स्वर्ग का वातावरण आए। In the heart, God always wants the music always to come. परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय में, हमारे मन में हमेशा एक गीत और एक कीर्तन चलता रहे परमेश्वर की ओर। It doesn't matter if you cannot sing at all. फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम बिल्कुल गा नहीं पाते थोड़ा You भी, can't make a play a musical instrument. फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम कोई संगीत के उपकरण को बजा नहीं सकते, But when you get filled with the Holy Spirit, you become like an opera star. लेकिन अगर तुम पवित्र आत्मा से भर जाते हो तो तुम गीत गाने में एकदम माहिर हो सकते हो। You can praise Him and thank Him and worship Him all throughout in the bus, train, whatever you're doing, you're cooking, and you can thank Him and praise Him. और तुम मन से गीत गाते हुए उसकी स्तुति और आराधना कर सकते हो, भले तुम कहाँ पर भी हो, भले तुम बस में हो या घर में हो या दफ्तर में रहो। All the time glorifying the name of the God the Father. हर समय पिता परमेश्वर के नाम को तुम महिमा दे सकते हो। That's why God has called us into His kingdom to really glorify the name of the Lord. और परमेश्वर ने इसीलिए हम सभी को उसके राज्य में बुलाया है ताकि हम लोग उसके नाम को महिमा दे सकें, That we should worship the Lord in the beauty of holiness. ताकि हम लोग पवित्रता के सुंदरता में परमेश्वर की आराधना कर सकें। And that is our privilege, brothers and sisters. और यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है भाई और बहनों। And we can do that by the power of the Holy Spirit. और हम लोग ये पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा कर सकते हैं। There are very few people in this world who are thanking and praising God. बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो लोग हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं, उसको धन्यवाद देते रहते हैं। As you heard, the brother gave an illustration. जैसे भाई ने एक उदाहरण दिया था, There are so many people who are asking God for so many things. कितने सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोग हमेशा परमेश्वर से मांगते रहते हैं। I want this, I want that, help me this, help me that, help me that. मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी यहाँ पर मदद कर, वहाँ पर मदद कर। They are the request department. वो लोग हमेशा विनती के डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, It's not bad. और वो उसमें कुछ खराबी नहीं It's है, good. अच्छा है। But you know who are the people who are bringing a lot of requests? लेकिन क्या तुम जानते हो वो कौन लोग हैं जो हमेशा बहुत विनती करते रहते हैं? All believers, सारे विश्वासी, nominal believers, जो नाम के लिए विश्वासी हैं वो, Hindus, Muslims, Parsis, Sikhs, all are giving requests to और जो God. दूसरे जो धर्म के लोग हैं, सभी ये सारे लोग हमेशा परमेश्वर की ओर विनती करते रहते हैं। And how many people are giving thanks to God? लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो लोग परमेश्वर की ओर धन्यवाद दे रहे हैं? Very few. Only the people who have been filled with the Holy Spirit. बहुत ही कम लोग, जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं वो लोग। And these are the people who are dear to God. और यही वो लोग हैं जो परमेश्वर के लिए बहुत ही प्रिय हैं, And we should be there. और हमें भी उसमें शामिल होना है। Jesus said to the 10 lepers, परमेश्वर ने उन 10 बीमार व्यक्तियों से कहा, he healed the 10 lepers. उसने वो 10 लोगों को जिनके पास एक बीमारी थी And उनको only ठीक किया, one came back to give thanks to God. लेकिन उन 10 लोगों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति वापस आया धन्यवाद देने के Who लिए। was that person? और वो व्यक्ति कौन था? He was a Samaritan. वो एक ऐसा व्यक्ति था जो यहूदी नहीं था, And he was just like, you can say, a backward class, scheduled caste, very useless type of person. I mean, a very poor man who was a backward caste. तो आज के भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही गरीब था और बहुत ही तुच्छ जात का जाना हुआ व्यक्ति। And that's how people who are poor and educated and who are nothing in this world, they come to give thanks to God. उसी तरीके से जो लोग बहुत ही गरीब होते हैं, हो सकता है ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो लोग ही परमेश्वर के पास ज्यादा आते हैं उसको धन्यवाद देते हुए। You know, we normally try to have heroes in this world. हम लोग वी हैव heroes. हम कईयों में से यहाँ पे ऐसे हम लोग कुछ लोगों की ओर देखते हैं जो हमारे लिए नायक है इस दुनिया में।
Who are the people who have achieved so much? कुछ ऐसे लोग इस दुनिया में जिन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ हासिल किया है। Some people are very rich. कुछ लोग बहुत ही धनवान हैं। Some people are very beautiful. कुछ लोग बहुत ही सुंदर हैं। Some people are very good cricketers. कुछ लोग बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। Or good footballers. खिलाड़ी हैं अच्छे फुटबॉल में, क्रिकेट में, specialists. या कुछ लोग कंप्यूटर में बहुत ही अच्छे होते हैं। You know, whom do we always say, I want to become like them? तो हम लोग हमेशा सोचते हैं उनको देख के कि एक दिन मुझे भी वैसा बनना है। You know whom we should become like? क्या तुम जानते हो कि हमें किसके जैसे बनना है? Can I see a person who's always giving thanks to God? That is the greatest person in the kingdom of God. क्या मैं एक ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ जो हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देता होता है? वो हमेशा परमेश्वर के राज्य में सबसे महान व्यक्ति रहेगा। Who's always joyful and happy and thankful to God for everything. जो हमेशा खुश रहता है, आनंदित रहता है और हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देता है हर एक चीज के लिए। Such a person is so rare. ऐसे जो व्यक्ति होता है बहुत ही कम मिलते हैं। Very rare among believers also. विश्वासियों में भी बहुत ही कम ऐसे लोग रहते हैं। Vast majority of believers grumble and complain like anything. All of us. ज्यादातर जो विश्वासी होते हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। हम लोग ज्यादातर तो बस कुड़कुड़ करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। And the Lord says, "You learned this new song." और परमेश्वर हमसे कहता है कि अब तुम एक नया गीत सीखो। Whom you can, how you can sing nicely. कैसे तुम ये गीत को अच्छे से गा सकते हो? In all the problems of life, you see God is in control. जो भी जीवन में मुश्किलें आते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उसके ऊपर नियंत्रण रख रहा है। And Lord, I thank God for that. तो इसलिए फिर हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर की ओर। Oh, that is in sight of God a beautiful song. और ये जो गीत हम लोग मुश्किल समय में गाते हैं, परमेश्वर की नजरों में बहुत ही अच्छा और सुंदर गीत होता है। Some time back with WhatsApp, Brother Sanjay had sent us a small thing about people who were singing. थोड़े समय पहले संजय ब्रदर ने व्हाट्सएप पे एक वीडियो शायद से डाला था जिसमें बहुत लोग गा रहे थे। But most of the singers, only 1 or 2 songs are going to heaven. लेकिन हो सकता है कि उस भीड़ में से सिर्फ एक या दो ही ऐसी आवाज है जो स्वर्ग तक पहुंच रही है। All the other songs are not going up to heaven. बाकी जितने भी जो गीत हैं वो स्वर्ग तक नहीं पहुंच रही है। Everybody was singing to impress other people. क्योंकि ये जो दूसरे लोग हैं वो लोग दूसरे लोगों को खुश करने के लिए गा रहे थे। But only that person was singing to impress God. लेकिन वो भीड़ में बस एक व्यक्ति था जो परमेश्वर को खुश करने के लिए गा रहा था। So most important, God sees what we sing from our own heart. तो ये परमेश्वर हमेशा देखता है हमारे मन की ओर कि क्या हम लोग मन से गा रहे हैं कि नहीं। And there are so many things to thank God for. और कितने सारे ऐसे चीजें हैं जिसके लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। The Holy Spirit will show you how many things are there to thank God for. और पवित्र आत्मा तुम्हें और दिखाएगा कि कितने सारी चीजें हैं तुम्हारे जीवन में जिसके लिए तुम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हो। And then we can really sing a song of praise and thanksgiving to God. और फिर हम लोग एक सच्ची आराधना और स्तुति वाला गीत गा सकते हैं परमेश्वर की The ओर। more we sing to God, the more the Holy Spirit fills our lives. जितना हम लोग परमेश्वर की ओर गीत गाते जाएंगे उतना ही पवित्र आत्मा हमें भरते जाता है। Then what happens? The situations around us also change. फिर क्या होता है कि हमारे आजू बाजू का जो परिस्थिति होता है वो भी बदल जाता We है। are saying we're saying that in Hebrews chapter 13, let us offer up a sacrifice of praise to God. जैसे हम लोगों ने इब्रानी 13 में पढ़ा कि हम सभी को बलिदान देना है एक स्तुति का, That is the fruit of our lips. जो हमारे जुबान का फल है। How difficult it is for us to stop grumbling and complaining. कितना मुश्किल होता है कभी कभी कि हम लोग कुड़कुड़ाए नहीं या शिकायत नहीं करें। So Lord Jesus, fill me with the Holy Spirit that always give thanks in every situation. हमें कहना है कि प्रभु यीशु तू मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर ताकि हर एक परिस्थिति में मैं तेरी स्तुति करूं, तुझे धन्यवाद दूं। We have to learn this new song. हमें ये नए गीत सीखना है। And the other 1,44,000 they learned this song. जैसे प्रकाशित वाक्य में हम लोग देखते हैं कि वो 1,44,000 जो लोग रहते हैं, जो लोग एक नया गीत गाते हैं। And where are we going to learn this song? और ये गीत हम लोग कहाँ पे गाने वाले हैं? In our homes, हम लोग के घरों में, in our workplaces, हमारे दफ्तर में, and all the different problems in life. और जीवन के जो अलग अलग परेशानियां या मुश्किल होते हैं उसमें हम लोग सीखते हैं। They are the practice songs. और यही पे हम लोग अभ्यास करते हैं। We can thank God for our bosses. हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर की और हमारे मालिकों के लिए। Thank God in everything, give thanks. हर एक चीज में हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। Oh, I don't feel like giving thanks. कई बार बोलते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे मन नहीं कर रहा कि मैं धन्यवाद दूं। Lord, fill me with your Holy Spirit. परमेश्वर तू मुझे तेरी पवित्र आत्मा से भर, And then I can worship and praise God. ताकि मैं तेरी स्तुति और आराधना कर सकूं। Our English language will not be enough, or whatever our mother tongue will not be enough. अंग्रेजी भाषा या हमारी मातृभाषा काफी नहीं है परमेश्वर की स्तुति और आराधना God करने will के give लिए। you, fill you with the Spirit, gift of tongues. पवित्र आत्मा तुम्हें फिर परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा से भरेगा और तुम्हें अन्य भाषा की वरदान देगा। Oh, then you can give thanks to God. Oh, for 1,000 tongues to sing my great Redeemer's praise. और फिर तुम उसको स्तुति गाना कर सकते हो अन्य हजारे भाषाओं में। And then I can worship God. और फिर मैं परमेश्वर की आराधना कर सकता The हूँ। gift of tongues is a very maligned gift. ये जो अन्य भाषाओं में बात करने की जो क्षमता है, इसको बहुत इस पे कीचड़ उछाला गया है। Most Pentecostals and charismatics have really abused the gift. क्योंकि ज्यादातर जो कुछ कलीसिया के जो लोग हैं उन्होंने इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया है। They speak in tongues and mainly in the meetings. वो लोग ज्यादातर मीटिंग में अन्य भाषा में बात करते हैं। As Brother Sachs says, they speak in many tongues in the meetings and go back home and speak in their mother tongue.
तो जैसे ब्रदर जैक कहते हैं कि वो लोग मीटिंग में आके अन्य भाषाओं में बोलते हैं और घर पे जाके अपने मातृभाषा में चिल्लाते हैं। The gift of tongues is mainly used for worshiping, praising God and thanking God and praying to God. लेकिन जो अन्य भाषाओं की जो वरदान है उसका सही इस्तेमाल ये है कि हम लोग अपने आपसी प्रार्थना के समय में परमेश्वर से बातें करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। We can do that in our private life while we are sitting in quiet time and the bus or the train or doing any other work. We can worship and praise and thank God. हमारे आपसी समय में जब हम लोग किधर जाते रहते हैं या यात्रा करते रहते हैं या अपने आपसी प्रार्थना के समय में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। And the Lord will edify us and we can worship and praise God. और फिर परमेश्वर हमें इसके द्वारा प्रोत्साहन देता है, सामर्थ्य देता है और हम लोग परमेश्वर की और स्तुति आराधना कर God सकते wants the praise and worship from our lips. परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हमारे होठों के जरिए परमेश्वर की स्तुति करें। And the power of praise is the greatest thing that can happen in our own lives. और ये स्तुति की जो सामर्थ्य है जो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, हमारे जीवन में सबसे महान चीज है जो हम लोग प्राप्त कर When सकते we हैं। praise God, the heaven gets opened over our lives. जब हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो स्वर्ग हमारे ऊपर खुल जाता है। And that's why we should have this, in the new year, develop the spirit of praise. तो ये नए साल में हमें ये आत्मा को प्राप्त करना है जिसके जरिए हम लोग स्तुति कर सकते हैं परमेश्वर की। Then we begin to fly. और फिर हम लोग उड़ सकते हैं। As somebody compared flying is like praise and prayer are like two wings of a bird. जैसे एक व्यक्ति ने उदाहरण दिया कि प्रार्थना और स्तुति एक चिड़िया के दो पंखों के अनुसार या समान होते हैं। One wing is praying. एक पंख है प्रार्थना, We are doing a lot of that. जो हम लोग काफी करते हैं। If a bird is just keep on flapping one wing, what happens? अगर एक पक्षी बस एक ही पंखो चलाता रहेगा तो क्या होगा? It doesn't go forward. तो आगे नहीं जाएगा, It goes in circles. वो उधर ही घूमता रहेगा We keep on going circle, circle, circle. और वो जगह पे गोल गोल घूमता रहेगा। But when you start praying and praising God, लेकिन हमें फिर प्रार्थना के साथ स्तुति भी करनी है, and then we start soaring high and high, तभी फिर हम लोग और ऊंचे जाते रहते हैं make progress. और प्रगति करते हैं। We are all used to praying. कि हम सभी लोग प्रार्थना से वाकिफ हैं। It's good to pray. अच्छा है, But the Holy Spirit will teach you to praise. लेकिन फिर पवित्र आत्मा तुम्हें और एक चीज सिखाएगा, वो है स्तुति देना। It was always, Lord, I want to learn to praise you. तो हमें हमेशा कहना है कि परमेश्वर मुझे सीखना है तेरी स्तुति करने के लिए। Lord, in everything I want to thank you and praise you. हर एक चीज में मुझे तेरे को धन्यवाद देना है और तेरी स्तुति करनी है। God is working everything in your own life for your good. परमेश्वर तुम्हारे जीवन में हर एक चीज तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा है That's why I can praise God. और इसीलिए मैं परमेश्वर की स्तुति कर सकता हूँ। God has brought us here in the meeting. That's why we can praise God. परमेश्वर ने आज हम सभी को यही मीटिंग में लाया है, इसलिए हम लोग उसकी स्तुति कर सकते He's हैं। kept us healthy that we can come here and praise and worship Him. उसने हमें तंदुरुस्त रखा है जिसके जरिए हम लोग यहाँ पर आके उसकी स्तुति और आराधना कर सकते There हैं। are so many things. कितने सारे ऐसे चीजें हैं। When you see people who are disabled, say, Lord, you give me legs so that I can walk, I can really come for the meeting, I can do so many things. Lord, I thank you for that. कई बार हम लोग जो अपंगी लोगों को देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे को धन्यवाद देखता हूँ कि तूने मुझे हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, जिसके जरिए मैं यहाँ पर आके तेरी स्तुति आराधना कर सकता हूँ। The devil is active all the time, showing you all your faults and all your problems. लेकिन जो शैतान होता है हमेशा तुम्हें तुम्हारी कमियां, तुम्हारी गलतियों के बारे में याद दिलाते रहता है, Because he doesn't want you to praise. क्योंकि वो चाहता नहीं कि तुम लोग भी स्तुति करो परमेश्वर की। Because he knows that once you start praising God, you will make progress, and the power of the devil will be defeated in your life. क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एक बार तुम परमेश्वर की स्तुति करने लग गए तो फिर उसकी जो शक्ति है तुम्हारे ऊपर वो टूट जाएगी और तुम अपने आत्मिक जीवन में प्रगति करने लगोगे। And then you will go further on to the Lord, and you will bring many others to the Lord. और फिर तुम परमेश्वर के पास और निकट जाओगे और तुम दूसरों के भी अपने साथ लेकर जाओगे। We see in the example of the Bible, people started praising God and things began to change in their own life. शैतान ने कितने सारे ऐसे उदाहरण बाइबल में देखे हैं जहाँ पे लोगों ने परमेश्वर की स्तुति करना शुरू की और उनके जो आजू बाजू में जो परिस्थितियां थी वो बदल गई। We don't praise God just to get things out of God. तो हम लोग को इसलिए नहीं परमेश्वर की स्तुति करनी है ताकि हम लोग उनसे और चीजें प्राप्त करें, Because God is good, He's done so much good for us. लेकिन इसलिए करनी है क्योंकि वो इतना अच्छा है और उसने पहले से हमारे लिए कितना कुछ किया है। He's already done too much for us. उसने पहले से हमारे लिए बहुत ज्यादा कुछ कर दिया है। That's why we must praise God. और इसलिए मैं परमेश्वर की हमेशा स्तुति करूंगा। And if He doesn't answer our prayers, takes long time, doesn't matter. Because of that also, Lord, I want to praise you. और भले उसने हमारे प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया या बहुत देरी से उत्तर दिया, फिर भी हम लोग हमेशा उसकी स्तुति करते रहेंगे। Many times we pray to God for other people. कई बार हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं And then we keep pray and pray and pray. और हम लोग फिर प्रार्थना करते रहते हैं। But that we must always say, thank you, Lord, that you are going to hear my prayer. तो फिर हमें हमेशा फिर अंत में कहना है कि धन्यवाद परमेश्वर कि तू मेरी प्रार्थना को सुनने वाला है। That is faith. क्योंकि उसी को विश्वास कहते हैं। Thank you, Lord, that you will do this work in your life, in this person's life. हमें कहना है कि परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तू ये कार्य ये व्यक्ति के जीवन में करेगा। Thank you, Lord, all power belongs to you. धन्यवाद परमेश्वर, सारी शक्ति तेरी है। Lord, I want to thank you and praise you. परमेश्वर मैं तेरे को धन्यवाद दूंगा, तेरी स्तुति करना चाहता हूँ। Then what happens? फिर क्या होता है? Things change. चीजें बदलती हैं And things start moving also. और चीजें फिर हिलने लगती हैं।
That is the secret of our spiritual life. यही है गुप्त बात हमारे आत्मिक जीवन की। And all these things the devil tries to hide it from our own और life. ये सारी चीजों को शैतान छिपाने की कोशिश करता है हमारे जीवन में। Lord, the Holy Spirit always tells us, thank God for everything. लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा तुमसे कहता रहेगा कि धन्यवाद दो परमेश्वर को, धन्यवाद दो परमेश्वर को। What are your problem, Lord? You are worthy of all praise. भले जो कोई भी मेरी समस्या हो, मैं लेकिन हमेशा परमेश्वर को स्तुति दूंगा क्योंकि वो योग्य है। That's why in Ephesians chapter 3, it's the verse 21 it says. तो इसलिए एफिसियों चैप्टर 3 में जाएंगे। एफिसियों चैप्टर 3 वर्स 21. वाक्य 21। एफिसियों 3 उसमें वाक्य 21। To him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. कलेशिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगायुग होती रहे। आमीन। The Holy Spirit wants us to always glorify the name of the Lord. पवित्र आत्मा चाहता है कि हम सभी लोग यहाँ पर हमारे जीवन के जरिए परमेश्वर की महिमा करें। Jesus Christ should be exalted. प्रभु यीशु हमेशा और ऊपर उठे। In the church, Jesus Christ should be exalted. कलेशिया में भी प्रभु यीशु ही ऊपर उठे। Not human beings, not brothers and sisters. लोग नहीं, भाई और बहन नहीं। Not even the church. कलेशिया भी नहीं। All the name of Jesus Christ should be exalted. बस प्रभु यीशु का जो नाम है उसको और ऊपर उठाना है। All glory and praise to Jesus Christ. सारी महिमा, सारी सामर्थ बस प्रभु यीशु के नाम की ओर ही जानी चाहिए। For how long? For generations, forever and forever. और कभी तक? पीढ़ी से पीढ़ी, युगायुग। Say, my Jesus, I want to worship you and praise you in the church forever and forever. तो हमें कहना है कि मेरे प्रभु यीशु, मुझे तेरी स्तुति करनी है, तेरी आराधना करनी है हमेशा हमेशा के लिए। If nobody else wants to praise God, Lord, I will praise you. भले और कोई भी तेरी स्तुति नहीं करे, मैं तेरी स्तुति करूंगा। If you come for a meeting, you start praising God. अगर तुम मीटिंग में आते हो तो तुम परमेश्वर की स्तुति करने लगो। For half a minute. भले वो सिर्फ आधे मिनट के लिए Lord, हो। you are able to do everything good for me. हमें कहना है कि परमेश्वर तू सारे चीज मेरे अच्छे के लिए कर सकता है। I will praise you, I will thank you. और इसलिए मैं तुझे धन्यवाद दूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। Lord, because you have been too good to me. क्योंकि तू मेरे तरफ बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है And that's प्रभु। why the Lord will fill you with the Holy Spirit. और फिर परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा से भरेगा। The more you are filled, the more you praise God, the more the Holy Spirit comes upon your life. जितना तुम प्रभु यीशु की स्तुति करते जाओगे, उतना ही पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आते जाएगा। All the glory will go to you, go to God. और सारी जो महिमा है वो परमेश्वर की ओर जाएगी। And as we sung, I will decrease and God will increase. जैसे वो गीत हम लोग गाते हैं कि हम लोग और कम होंगे और परमेश्वर और बढ़ेगा। In the church, not a lot of people, they put themselves up and the Lord comes down. कलीसिया में कई बार ऐसा होता है कि लोग खुद को ऊपर उठा देते हैं और फिर परमेश्वर नीचे आ जाते हैं। The Lord should always be glorified in everything. नहीं, परमेश्वर को ही सारी महिमा मिलनी चाहिए हमेशा, हर एक चीज में। Jesus Christ is present here. प्रभु यीशु यहाँ पर उपस्थित है। His name should be glorified. तो उसका जो नाम है वो उसको महिमा मिलनी चाहिए। All that is done for the glory of God only will remain. जो सारी चीजें परमेश्वर की महिमा के लिए की गई है वही बचने वाला है। All that is done for our glory will go away. जो सारी चीजें हमारी महिमा के लिए हुई है वो सब निकल जाएगा। Many times when we go to heaven, God will have to say, all these things you did to impress other people and to glorify yourself. सोचो एक दिन जब हम लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और वहाँ पे प्रभु यीशु हमसे कहेंगे कि ये सारे जो चीजें तुमने अच्छे काम किए थे, तुमने खुद की महिमा के लिए की थी। You'll get a big zero for all those things. तो इसलिए ये सारे कामों के लिए तुम्हें 0 अंक मिलता है। It's like correcting of a paper. वो जैसे कि ये पेपर करेक्ट करते You समय did these good things, हमने कई सारे अच्छे चीजें लिखी, but for my name. लेकिन मेरे नाम के लिए। Then God said 0. तो परमेश्वर कहता है कि इसके लिए तुम्हें 0 अंक मिलते This हैं, is also 0. इसके लिए भी 0 अंक मिलते हैं। But some things you did to glorify God in a life, praise God. Very good. फिर कुछ ऐसे चीजें जो तुमने अपने आपसी जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए की, Some बहुत ही अच्छा, उसके लिए अंक मिलते हैं। That's why the more we stand in public and try to do that, the more chances of getting zeros are higher. तो इसलिए वो लोग जो ज्यादातर पब्लिक के सामने खड़े रह के परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, हो सकता है कि वो लोग को अंत में 0 मिले उनके कार्य के लिए। The danger of getting zeros are more when you do public ministry. तो इसलिए 0 अंक मिलने का जो खतरा ज्यादा होता है उन लोगों के लिए जो पब्लिक में सेवकाई करते And हैं। so many believers are running to do public ministry. लेकिन ज्यादातर जो विश्वासी है वो लोग हमेशा उत्साहित होते हैं पब्लिक में सेवकाई करने The का। chances of getting zero are more high. नहीं, लेकिन ये जो काम है इसमें 0 अंक मिलने का खतरा ज्यादा है। When you do a private ministry to the Lord, nobody knows, nobody gives thanks to you. लेकिन अगर तुम एक आपसी सेवकाई कर रहे हो परमेश्वर की ओर, तो कोई भी उसके बारे में नहीं जानता, कोई भी आके तुम्हें धन्यवाद नहीं देगा। Nobody to impress. कोई भी, किसी को भी हम लोग खुश भी नहीं कर सकते। All your prayers are done in private. जो भी तुम प्रार्थना करते हो वो तुम आपसी जीवन में करते हो। Some people say, "Arey, this because I prayed for it, it happened." तो कुछ लोग कहते हैं कि जब भी कोई प्रार्थना का उत्तर मिल गया तो मैंने प्रार्थना किया prayed इसलिए for उसका it. उत्तर आ गया, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया था। Arey, if you prayed for it, just keep quiet about it. अगर तुमने प्रार्थना किया हो और उसका उत्तर आया हो तो तुम मुंह बंद रखो। You're trying to show everybody that you prayed. तुम सबको दिखाओ मत कि तुमने प्रार्थना किया है। Everybody should give me also the credit. तो इसलिए लोग मुझे भी उसके लिए कुछ मुझे मिलना चाहिए। See, all the credit comes on the last day.
जो भी महिमा है, जो भी तुम्हारा इनाम है, उसको अंत के दिन के लिए रखो। Jesus said, in that day, many who are first will be last and the last will be first. प्रभु यीशु ने कहा था कि अंत के दिन में कई लोग जो एकदम आगे हैं वो लोग पीछे रहेंगे, और एकदम जो लोग पीछे हैं वो लोग आगे रहेंगे। Who are the people who are first? कौन ऐसे लोग हैं जो एकदम आगे रहते हैं All the आज? preachers, singers, all the things who are out in the limelight. सारे प्रचारक या जो गीत गाने वाले होते हैं वो लोग आज एकदम सबसे सामने हैं। They are the limelight. तो वो लोग हमेशा सबके नजरों के सामने होते हैं। But if we don't live in the presence of God and humble ourselves, all the good things that we do will count for zero. लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे और खुद को नम्र नहीं करेंगे, तो ये सारे हमारे अच्छे काम का कोई फायदा नहीं है, हमें All शून्य that अंक is done for मिलेगा। the glory of God will the secret life will remain forever. लेकिन हमारे गुप्त के जीवन में जो कुछ भी हमने परमेश्वर की महिमा के लिए चीजें किए हैं वो हमेशा के लिए रहेगा। There are so many things we can do in secret. तो कितने सारे ऐसी चीजें हैं जो हम लोग एकदम चुपचाप अपने गुप्त जीवन में कर सकते And हैं, one day the Lord will reward you openly. और एक दिन फिर सभी के सामने अंत के दिन में परमेश्वर तुम्हें इनाम देगा। I always like to repeat this example which happened in Bangalore. ये बैंगलोर में जो उदाहरण हुआ था, मैं उसको हमेशा दोहराना बहुत ही पसंद करता हूँ, It's such a wonderful story. It's worth telling it over and over क्योंकि again. इतनी अच्छी कहानी है कि ये वो योग्य है बार बार दोहराने का। There was a sister who went for the first time to Bangalore conference, एक स्त्री बहन थी जो पहली बार बैंगलोर कॉन्फ्रेंस गई थी, and she got up at 4 o'clock in the morning, और सुबह 4 बजे उनकी नींद खुली and she went to the washroom, और वो बाथरूम में गई। and she saw one lady washing all the bathrooms. There are many bathrooms and toilets. She saw some lady washing the bathrooms तो and जब वो toilets. बाथरूम के एरिया में पहुंची, उसने देखा कि वहाँ पे एक स्त्री थी जो सारे बाथरूम और टॉयलेट्स को साफ कर रही थी 4 o'clock in the morning. सुबह के 4 बजे। She said, "Oh, you're working. Why you come to do work over here so early in the morning?" तो वो बहन ने उस स्त्री से पूछा कि तुम यहाँ पे काम करने वाले हो क्या, तुम इतने सुबह सुबह क्यों यहाँ पर आए हो? She thought she was the worker over there. तो बहन को लगा कि हो सकती है वो यहाँ वहाँ की वो काम करने वाली है। And this lady said, I'm not a worker. I'm also part of the conference. I'm तो one वो of the जो sisters here. जो स्त्री थी उसने कहा कि मैं यहाँ पे काम करने वाली नहीं हूँ, मैं भी एक बहन हूँ जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के लिए आई हूँ। But I thought that before everybody gets up in the morning, I'll keep all the bathrooms and toilets clean. लेकिन मैंने सोचा कि इसके पहले कि बाकी सब लोग उठ जाए और बाथरूम का इस्तेमाल करें, मैं उनको साफ सुथरा रख दूँ। I didn't want anybody to know. मैं चाहती नहीं थी कि कोई इसके बारे में जाने। But you got up in the morning. That's why you saw me. अभी तुम उठ गई जल्दी तो इसलिए तुमने मुझे देख लिया। I said, she wanted to do is that unto the Lord. तो ये जो बहन थी वो अपना जो काम है परमेश्वर के लिए कर रही थी। And what work was she doing? और वो क्या काम कर रही थी? Toilet cleaning. टॉयलेट साफ कर रही थी। If somebody had seen her, they would have also announced her name that she's such a wonderful girl. Her sister was doing these things. अगर कोई और उसको देखता तो हो सकता है उसको नाम की घोषणा करता कि ये बहुत ही अच्छी बहन है जो इतना अच्छा काम कर रही है। I don't know the name of the sister. लेकिन मैं नहीं जानता वो बहन का नाम क्या है। She's an unknown sister. वो एक अनजान बहन है, She did it to the Lord. क्योंकि उसने परमेश्वर की ओर ये चीज की थी। And such a thing can always warm our hearts. और ऐसा जो कहानी या उदाहरण है हमारे मनों को हमेशा चुनौती दे सकती है, She did it in secret to the Lord. क्योंकि उसने गुप्त रीति से परमेश्वर की ओर ये अच्छा काम किया। One day her reward will be tremendous. एक दिन उसका जो इनाम है बहुत ही अच्छा रहेगा। And that sister, when we hear that, we can remember this message much better than all other messages that we hear. तो जब हम लोग ऐसे उदाहरण के सामने आते हैं तो हम लोग ये उदाहरण और ये जीवन हम लोग को ज्यादा याद रहता है इसके बदले कि कोई प्रचार जो हमने सुना हो उस समय। So let's start this year with the spirit of praise and thanksgiving. तो स्तुति और धन्यवाद देने वाली आत्मा के साथ हमें ये नए साल की शुरुआत God करनी can है, transform and change our lives. और परमेश्वर हमें बदल सकता है पूरी तरीके से। Hallelujah. हालेलुया। Can you hear our brothers saying? Can you hear